So let's start most important journey, 12th accountancy. So start with a smile, with good mood, no stress, no tension. Whatever from 11th result या कुछ भी आपके है, apart from that, because it's total new journey. हम जो भी बेटा यहाँ पे करेंगे वो totally different होगा. 11th class has no chapter that to be used in this journey. That is only a base foundation. You know debit, credit, yeah, you know what is cash book, depreciation, profit and loss. That's only the basic foundation, basic part, right? Before starting the 12th accountancy, I want to ask one question. Um, Business organization. There are three types of business organization. Have you studied in business studies? Anyone want to change the seat? आगे पीछे जाने किसी के? आज थोड़ा सा टाइट रहेगा बिकॉज सबको मैंने कंबाइंड बुलाया है, फिर हम फिर सेपरेट हो जाएंगे, तभी हम 2 या 3 बैच डिक्लेयर कर देते हैं ताकि एक बैच में बहुत ज़्यादा रश ना रहे, राइट? 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं. नंबर 1, everybody will participate. Number 1, good. That we have done in 11th. 11th में आपका पूरा जो अकाउंटेंसी था वो सोल के ऊपर था. Second, partnership, partnership firms, and third is joint stock companies. Hindu undivided family is also one aspect, but majorly we have 3 things. Yes, वो भी है. Society is also there, NPO is also there, but मेजरली जो हम ज़्यादा देखते हैं जिनके अकाउंट्स हमें करने हैं 11th 12th में स्टडी, बाकी चीज़ों को आपको ग्रेजुएशन लेवल में मिलेगा. We have studied already sole trade. Now we are going to study 2 things, partnership and joint stock companies. Volume 1, आपका जो volume 1 है that is based upon partnership, that is dedicated to partnership. We have total 7 chapters. CBSE board, ICSE board, doesn't matter. Every state board has 7 chapters. There's no difference of any board. Syllabus same है 11 12th का. One apart from 1 or 2 chapters, एक दो चैप्टर ऐड हो जाते हैं, ऐड ऑन, but basically partnership is based upon 7 chapters that we are going to start today. Second volume, just intro दे रहा हूँ आपको syllabus का. Second volume है company accounts के ऊपर. आप सुनते shares, debentures, company accounts. So that is volume 2. And before doing volume 3, it is a must you should have the knowledge about volume 2. That's why we will follow this sequence जो CBSE NCERT का decided है. Volume 1, Volume 2, Volume 3. Volume 2 तो schools में भी Volume 1 के बाद ही होगा. Some schools start Volume 3, whatever the reason they have, that I will help a lot. आपको एक साइड बाय साइड मेथड से सपोर्ट रहेगी, डोंट वरी. ऐसा नहीं कि 2 months आपको वहाँ पे कुछ स्ट्रेस रहेगा या प्रॉब्लम रहेगी, उसका सोल्यूशन है ऐप के थ्रू भी, और आई विल ऑल्सो गिव द लेक्चर्स, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वॉल्यूम 1, दैट इज बेस्ड ऑन पार्टनरशिप. टेल मी, अच्छा ये जो जितने भी नोट्स हैं दैट वी विल इशू टुमारो, बिकॉज टुडे क्लैरिटी नहीं थी, मंडे ट्यूसडे, आज आप डिवाइड कर लोगे एंड इन नेक्स्ट क्लास यू विल गेट द नोट्स. बुकलेट होगी कंप्लीट which includes theory notes. We have 2 modules in 12th class: theory notes module 1, complete notes, and second worksheet module 2. In that worksheet you will find everything. If you have if you do that worksheet means आपको अगर बुक करनी है तो बुक तो साथ में हम करेंगी, बट अगर आप वर्कशीट करते हो तो उसमें आपकी सारी बुक्स कवर्ड है. आपकी ये टीएस बुक भी कवर्ड है, अदर बुक्स भी जो स्कूल्स में है, या पैन इंडिया 30 बुक्स हमने इसमें कवर की हैं, तो ऑब्वियसली उसका लेवल थोड़ा सा एनहेंस होगा. मैं इसको डिवाइड करता हूँ. इफ एनीवन वांट टू डू लिमिटेड क्वेश्चंस फॉर ओनली सीबीएसई तो वो दे कैन डू. इफ यू वांट टू एनहेंस कि आपको सीयूटी जो एंट्रेंस टेस्ट आपका 12th के बाद होगा, आज हमारा वो बैच स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग में, उसकी क्लासेस मॉर्निंग में होती है, तो टुडे वी हैव स्टार्टेड, या सीए फाउंडेशन, तो थोड़ा सा उसमें वर्कशीट में हमने एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है? वो आई विल टेक द क्वेश्चंस इफ यू वांट, बट टुडे हम विदाउट नोट्स करेंगे, और आज का डे हैवी इंट्रो के ऊपर है ना. बट आई वांट ऑल ऑफ यू, आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू ओनली द पार्टिसिपेशन. आपको इंटरेक्शन करना है जितना हो सकता है. आई नो इट्स द फर्स्ट डे और आपके लिए कॉन्सेप्ट न्यू है. some of you have already watched some lectures also. some ने कुछ आप में से ऑलरेडी मोबाइल ऐप पे एक्सेस दे चुके हैं, 1 month से वो स्टडी कर रहे हैं, बट उसको एडवांस में यहाँ नहीं शो करना है कि सर आई विल गिव द आंसर.
तो क्योंकि वो फिर आगे का जो पूरा सीक्वेंस होता है, सस्पेंस होता है, वो ब्रेक हो जाएगा। कीप दैट नॉलेज विद यू, उसका आपको एक बैक एंड पे बेनिफिट मिलता रहेगा कि आपको यहाँ पर जो समझ आएगा वो लेवल आपका अपर अपने आप हो गया है, क्योंकि आपने पहले से सुना हुआ है। बट मेरे लिए वो कंपल्सरी नहीं है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी जीरो लेवल, ठीक है, उसमें मेरे को मैटर नहीं करेगा वो, दैट इज ओनली ऑन योर बेनिफिट। नाउ द फर्स्ट वर्ड इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्यों स्टार्ट करते हैं हम? आई नॉट रीड दीज नोट्स, डोंट वरी, हम इसके अंडरस्टैंडिंग में जाएंगे और अपने लेक्चर को आज वहाँ ड्रॉप करेंगे जहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। और फर्स्ट डे विल बी ऑन इंट्रो पार्ट। ये नोट्स आपको कल मिल जाएंगे, सो डोंट राइट एनीथिंग, नीड नहीं आपको, ठीक है। पार्टनरशिप क्यों करते हो आप? मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम एनी फॉर्मल लैंग्वेज। हम क्यों चाहते हैं कि कोई पार्टनर हो बिजनेस के अंदर? क्या पर्पस है? डोंट रीड दिस नोट्स, अपनी तरफ से प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने की। नहीं नहीं, वो तो बहुत बहुत बात की बात है। यस, टू इंक्रीज द रिसोर्सेज, यस, डिवाइड रिस्क, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और मैनेजमेंट, गुड, एनीथिंग? To spread out the liability of the single partner. Yes, liabilities, losses, and that is secondary work. First क्या है वो आपने किसी ने आंसर नहीं बोला। टू इन्वेस्टमेंट, फंड्स, हाँ, वन ऑफ द कैपिटल, हाँ, फंड्स। बेसिकली जब हमें बिजनेस से, आई एम डूइंग दिस प्रोफेशन, बट मुझे लगता है कि दो चीज़ों की कमी है यहाँ पे। एक तो मेरे पास फंड्स की लिमिटेशन हो सकती है। अगर मुझे अब कुछ ग्रोथ पे जाना है, अगर मुझे अब ब्रांचेस ओपन करनी है, बंसल कॉमर्स क्लासेस की ब्रांचेस ओपन करनी है, आई नीड फंड्स। वहाँ रिस्क भी रहेगा, हो सकता है फर्स्ट ईयर क्या हो जाए, लॉस हो जाए। इस चीज़ के डर से सोल ट्रेड ऑलवेज सोल ट्रेड, इस डर से ना सोल ट्रेड ऑलवेज सोल ट्रेड ही रह जाता है। उसको लगता है कि अगर मैंने पंचकुला में ब्रांच ओपन कर ली और वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए, स्टूडेंट्स का फ्लो कम हुआ, फीस कम हुई, लॉस हो गया, तो हु विल बियर दैट लॉस? तो इस फियर फैक्टर को खत्म करने के लिए ही कभी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी 1932 में। तो ये एक एक्ट है जो आप स्टडी करने जा रहे हो। अब ये विदाउट एक्ट कुछ नहीं मिलेगा आपको। 11th वॉज योर जर्नल स्टडी, आपने जर्नल एंट्रीज, लेजर, वट एवर यू, आपने कुछ भी प्रैक्टिस किया, वो एक जर्नल था जो आज भी यूज होगा। बट अब हम जो भी करेंगे वॉल्यूम 1 2 3, वो एक्ट पे बेस्ड होगा। एक्ट मीन्स लॉ, अंडरस्टैंड करते हो लॉ को? जो लिखा है वैसा ही हमें करना है। ऑब्वियसली इस चैप्टर का लेवल 10x होने वाला है, यही हमारा फंडामेंटल है, इट्स लॉन्ग चैप्टर। तो यहाँ हम एक लॉ पढ़ने वाले हैं, 1932 के अंदर बना था। उसमें क्या कहा गया था कि पार्टनर्स दो चीज़ों के लिए आपस में मेनली दे स्टार्ट टुगेदर बिजनेस। वन इज, ये तो आपको आप हमने देख लिया कि इन्वेस्टमेंट का एक लिमिटेशन है सोल ट्रेड के पास, स्किल, मैनेजमेंट, रिस्क टेकिंग। बट टू ओवरकम दीज लिमिट्स, सोल ट्रेडर हैज़ टू ज्वाइन हैंड्स विद अदर्स। उसको अदर पर्सन चाहिए जो उसके साथ मैनेजमेंट शेयर करे, पैसा शेयर करे, रिस्क शेयर करे, एवरीथिंग लाइक। तो वहाँ पर एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 फ्रेम किया गया है पास्ट के अंदर, ब्रिटिश के टाइम का ये एक्ट है, और हमने इसको एज इट इज कॉपी कर लिया है। वी आर एक्सपर्ट इन दैट। कौन बनाएगा नया एक्ट? ब्रिटिश का बनाया हुआ है, इंटेलिजेंट थे वो लोग, उन्होंने जैसा बना दिया वैसा ही हमने कॉपी कर दिया। बिकॉज आपको पता है 1982 का टाइम क्या था, कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर। इट मीन 60 ईयर्स पहले जो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ था, सपोज 80 ईयर्स पहले, वो अभी भी चल रहे हैं। 10 साल पहले कोई स्टूडेंट पढ़ के गया यहाँ से, आप पढ़ रहे हो, दिस नो चेंज। पार्टनरशिप में चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम 2 3 चेंज होता है एवरी ईयर, उसमें बहुत सी नई चीज़ें आती हैं, ये फिक्स अभी भी। इसके अकॉर्डिंगली एक डेफिनेशन है हमारी पार्टनरशिप की, और आपने सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान देना बेटा, और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आपको लेके आने, साइलेंटली नहीं रहना क्लास में बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ तो आप बता सकते हो। क्या होता है एसोसिएशन? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन। व्हाट इज एसोसिएशन? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कोई डील करता है, तो वो क्या बन जाती है? एक एसोसिएशन। वो एक, वहां पर हमारा एग्रीमेंट बनता है आपस में, वो एग्रीमेंट हमारे रिलेशनशिप को शो करता है। तो
पार्टनरशिप एक बेसिकली एग्रीमेंट है अमंग द टू पार्टनर्स। अच्छा, मिनिमम टू पार्टनर्स हो सकते हैं क्या? सिंगल तो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली सोल ट्रेड हो जाएगा। मिनिमम कितने कितने परसेंट चाहिए हमें? 2% चाहिए टू फ्रेम ए पार्टनरशिप, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। ज्यादा कितने हो सकते हैं? एक बता देना बेटा अगर कम ज्यादा करें। मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, उसके बाद अभी हम बात करेंगे कि ये बात कौन बताता है कौन नहीं बताता। बट बेटा हमारे इस एक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ ये चीज। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो सीबीएसई के अंदर, सीयूटी के अंदर आज भी आता है। पार्टनरशिप एक्ट मैक्सिमम नंबर्स कितने बताता है? आप बोलोगे नो, नो लिमिट। यहाँ कोई लिमिट प्रेस्क्राइब है ही नहीं। टू और मोर का कोई लिमिट है? टू तो लिमिट है, मिनिमम टू। मोर मीन्स कितने हो सकते हैं? 1000 भी हो सकते हैं। कोई लिमिट थोड़ी बताई इसने, क्योंकि 1932 में जब एक्ट बना था तब आपको पता है बिजनेस उस लेवल पे नहीं होते थे जब अब जिस लेवल पे अपने, वहाँ टू और मोर से काम चला गया था। पार्टनर्स होते 2 3 4 5 10 20 ऐसे होते थे। आज भी वही लिखा हुआ है वहाँ पे, टू और मोर पर्सन्स। क्यों क्यों वो टुगेदर दे आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, क्या क्यों कर रहे हैं वो? बताइए क्या रीजन है उनको एक साथ आने का? वो ठीक है, उनका रिस्क, रिस्क यहाँ पर शेयर हो गया, मैनेजमेंट शेयर होगी, पैसा भी वो ज़्यादा लगा सकते हैं। मेरे पास 10 लाख है, अब उससे 10 लाख मेरे पास भी है, तो अगर हम 10 लोग मिलकर बिजनेस करेंगे कितना हो गया? अब 1 करोड़ में अगर एक पेट्रोल पंप ओपन हो सकता है, तो मेरी हैसियत नहीं है पेट्रोल पंप ओपन करने की, आपकी भी नहीं है ना, बट हम सब मिलकर 1 करोड़ अर्न कर सकते हैं। 10 लाख रुपीज से हम कितना कमा सकते हैं मंथली से? 50,000। लेकिन हम 1 करोड़ से 5 लाख कमा सकते हैं, 10 लाख कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, उसकी रिटर्न ज़्यादा होगी। तो दैट्स वाई वो तो सब हमने डिस्कस कर लिया कि पार्टनर्स आपस में क्यों टुगेदर स्टार्ट करते हैं। बट उनका मेन पर्पस क्या है? क्या इतने पर्पस है कि चलो हमें एक दूसरे का सपोर्ट मिल जाएगा मैनेजमेंट में, लॉस बियरिंग में? मेन उनका पर्पस क्या है? नो नो, वो तो सब है, मेन है लॉस हो सकता है, बट लॉस के लिए कोई स्टार्ट करते हैं बिजनेस? आई एन आइडिया, मेरे पास एक बहुत बढ़िया एक आइडिया है, हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस, पैसा लगाएंगे और 2 साल के बाद या 1 साल के बाद लॉस हो जाएगा और बिजनेस बंद हो जाएगा हमारा। और आप ये प्रपोजल पेरेंट्स को बताना, तो बोला सर ने बोला कि कल से एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं मिलके, 1 साल के बाद लॉस हो जाएगा उसमें, नोबडी विल कंट्रीब्यूट ना। हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा ऑलवेज क्या रहता है कि वी आर स्टार्टिंग बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। लेकिन लिखा हुआ एक्ट में कि प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी हो सकता है, अगर लॉस होगा तो वो भी तो शेयर करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप इज स्टार्टेड टू अर्न, टू शेयर ओनली द प्रॉफिट्स। एंड इसमें एक और पॉइंट था, बिजनेस। कौन सा बिजनेस, लीगल या इलीगल? लीगल बिजनेस, क्योंकि उस वही यहाँ पे ऑथराइज होगा। इलीगल का मीनिंग नहीं है कि हम मिलकर कोई बैंक रॉबरी का प्लान कर रहे हैं और पार्टनर्स स्टार्ट हो गए हम, और फिर 3 पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट भी हो गया है कि कौन कौन क्या क्या करेगा, तो बाद में झगड़ा हो गया उनका, पुलिस स्टेशन पहुंच गया वो कि बैंक रॉबरी हुई, सारा पैसा तो ये लेके भाग गया और हमें कुछ मिला ही नहीं, तो उसको पकड़ो पहले। इलीगल बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता ना। लीगल बिजनेस, वो भी लीगल बिजनेस में, ये तो चलो एक जस्ट मैंने आपको फनी वे में बताया, उसमें भी है कि समटाइम्स वन बिजनेस इज लीगल इन हरियाणा, इलीगल इन चंडीगढ़। जैसे वाइन का केस हुआ था, अब वाइन बंद कर दी कि हरियाणा में सेल नहीं होगी, तो सपोज हरियाणा में वाइन सेल नहीं होती लेकिन चंडीगढ़ में होती है, तो पंचकुला का जो बॉर्डर एरिया है उसके बिल्कुल साथ में चंडीगढ़ ओवर होता है, तो एक शॉप यहाँ से यहाँ आ गई, जस्ट जैसे मैं वहाँ से वहाँ चला जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं हरियाणा के अंदर हूँ, 2 स्टेप के बाद क्या शुरू हो जाएगा? चंडीगढ़। कोई फर्क नहीं पड़ा, आप यहाँ से परचेज करो या वहाँ से परचेज करो, बट वो लीगल हो गया वहाँ पे। हरियाणा में इलीगल था, यहाँ पे लीगल हो गया। समटाइम्स वन बिजनेस इज लीगल एट ए मोमेंट, बट एट अदर मोमेंट दैट इज इलीगल। तो आप जब एक पार्टनरशिप फ्रेम कर रहे हो तो आपको एक एडवोकेट से एडवाइस लेनी पड़ेगी कि इस टाइम क्या ये बिजनेस लीगल है और हम इस बिजनेस को चलाने के लिए एक साथ आ रहे हैं और हमारा पर्पस है प्रॉफिट को शेयर करना। मैं सिंपल वर्ड्स भी साथ साथ बताता रहूँगा, क्लियर है इतना? अब सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड वो ये है, कैरिड ऑन बाय ऑल या
एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आ जाओ आ जाओ। अब जो पार्टनरशिप का बिजनेस है या तो वो सब लोग चलाएंगे तब भी ओके। अब इफ यू हैव एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, हाँ तो वो क्या है कि एक जो एक्टिव पार्टनर है वो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। एक पार्टनर है जो घर पे रहते हैं, घर पे सोता रहता है, बिजनेस में आता नहीं, वो फिर बिजनेस को क्या देता है, फंड्स। वो एक रिटायर्ड पर्सन है, कहता है मेरे पास पैसे बहुत है बट फिजिकली मैं इतना नहीं हूँ कि मैं रोज बिजनेस में आऊँ काम करूँ। तो मतलब ठीक है सर ऐसा करो, आप पैसा लगा दो, वर्क मैं कर लूँगा। तो अब पैसा लगा दिया उसने, वर्क मैं कर रहा हूँ, ये भी डील होगी, प्रॉफिट हाफ हाफ। या वो ज़्यादा पैसे लगाएगा, मैं कम लगाऊंगा। तो वर्किंग पार्टनर इसको हम बोलते हैं वर्किंग एंड नॉन वर्किंग। ये जरूरी नहीं कि पार्टनरशिप में हर पार्टनर ही वर्किंग हो। यू आर डूइंग जॉब, यू आर इन गवर्नमेंट जॉब, आप करते रहो गवर्नमेंट जॉब, किसी को पैसा दे दो तो आप वहाँ के पार्टनर बन जाओगे। तो पार्टनर बनने के लिए आपको या तो फंड्स देने पड़ेंगे या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो आपके आपके पास राइट आएगा क्या शेयर करने का, प्रॉफिट शेयर करने का। गॉट इट, क्लियर है आपको? लेकिन इसका एक पॉइंट है, अगर एक पर्सन एक्ट करता है, से द टू पर्सन्स ए एंड बी, इसमें ना केस स्टडी आती है। अभी ना जो ट्वेल्थ का जो थ्योरी है वो इसलिए नहीं कि आप याद करो, ये इट्स ए गुड न्यूज फॉर यू, फैंटास्टिक न्यूज़ कि अब आपको याद नहीं करना। मैं कभी नहीं बोलूंगा थ्योरी याद करो, देयर विल बी नो टेस्ट जहाँ पे 3 मार्क्स की थ्योरी आ रही है। प्लस वन में जो टेस्ट होते थे उसमें हम 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स की थ्योरी दे सकते थे आपको। नाउ थ्योरी इज ओनली फॉर नॉलेज, आपको उसमें से केस स्टडी आएगा। तो आज का क्लास है थ्योरी के ऊपर हो, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि न्यूमेरिकल तो हम फुल ईयर करेंगे। तो थ्योरीज के ऊपर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, केस स्टडीज, ए एंड आर। नाउ पेपर इज वेरी क्रिएटिव, डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ नहीं आता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम लिमिट कितनी है, और हर किसी का आंसर होता है 50 50 50 50, जबकि लिमिट ही कोई नहीं है। थ्योरी में क्या लिखा, आप अपनी पहली लाइन ही भूल जाते हो। आज फर्स्ट डे आपका, इससे पहले कोई कोई डेफिशिएंसी, कोई लॉस नहीं आपका, यहीं से शुरू होगा। नाउ यू आर नॉट इन लॉस एनी ऑफ यू, बट कल तक एक पर्सन लॉस में होगा क्योंकि वो वन डे का लेक्चर घर जाके स्टडी नहीं कर रहा या उसका होमवर्क नहीं कर रहा। यू नाउ यू आर एट ए न्यूट्रल लेवल। तो यहाँ से हर एक बात को समझना है, एक्टिव रहना है, सब लोग एक्टिव होंगे, ठीक है। लिमिट कोई नहीं है, बस वहां लिखा है 2 और मोर, ऐसे यहाँ पे लिखे ए एंड बी में से अगर ए एक्टिव है, ए वर्क कर रहा है, वर्किंग पार्टनर है, और बी नॉन वर्किंग पार्टनर है, तो जो डिसीजन ए लेगा वो बी को ही मानना पड़ेगा। जो डिसीजन ए लेगा वो किस पे बाइंड किया जाएगा, बी ऑटोमेटिकली बाउंड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बेटा एजेंसी प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, जहां दो लोग होते हैं, आई डोंट नो आपने ये चीजें सुनी नहीं लाइफ में कभी, एजेंट एंड प्रिंसिपल, दो लोग होते हैं। बिजनेस स्टडीज में कहीं ना कहीं आपको आ गया होगा या आने वाला है +2 के अंदर। सपोज मैं प्रिंसिपल हूँ और मैंने आपको बोला कि आप शॉप पे बैठो, आप जितने का भी डील करोगे वो मेरे को एक्सेप्टेड है। अब शॉप पे जो पार्टनर बैठा है, जब क्लाइंट आएगा उसको थोड़ी पता है कि इसके और कितने पार्टनर्स हैं। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, किसी से बात करते हो, तो आपके लिए तो वही ओनर है ना। तो अगर किसी एक पार्टनर ने डिसीजन ले लिया और डील कर दी और उस डील से लॉस हो गया, तो इस पार्टनर को मानना पड़ेगा। वो ये नहीं कहेगा कि मेरे से तो आपने कभी कंफर्म नहीं किया, आई विल नॉट शेयर दैट लॉस, बिकॉज आप पार्टनर्स हो। जब आप पार्टनर्स हो तो आप एक दूसरे को क्या करते हो, बाइंड करते हो। फिर कोई डिसीजन अगर बी लेगा कल को, मतलब दोनों ही वर्किंग है, जरूरी कि एक नॉन वर्किंग होगा, दोनों वर्किंग है, इसने डिसीजन ले लिया कोई भी बिना पूछे इसे, थर्ड पार्टी की कोई लॉस नहीं है, सॉरी कोई मिस्टेक नहीं है। अब ये डिसीजन ए को मानना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक ए के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्म। इसलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप का बिजनेस चाहे कोई एक पार्टनर करे या सभी करे, अगर कोई एक पार्टनर कर रहा है, ही इज एक्टिंग फॉर ऑल। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ओके बेटा, मैं मैथ्स टीचर के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ आपसे, तो इट मीन अगर उसने मुझे अथॉरिटी दी आपसे बात करने के लिए तो ही तो मैं कर रहा हूँ। अब जो डिसीजन मैं ले लूंगा उनको मानना पड़ेगा, दे कांट डिनाई, क्योंकि उन्होंने मुझे क्या दे दी, अथॉरिटी। तो जब हम एक दूसरे को अथॉरिटी दे देते हैं तो हम एक दूसरे के लिए क्या बन जाते हैं, प्रिंसिपल एंड
एजेंट, इसे एजेंसी प्रिंसिपल बोलते हैं, जो पार्टनरशिप में यूज होता है। इसलिए कोई भी पार्टनर कोई भी डिसीजन लेता है वो फिर सबको मानना पड़ेगा, चाहे सब पार्टनर्स वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, कोई एक नॉन वर्किंग है मीन्स। तो अब एक डेफिनेशन यहाँ से क्रिएट होगी। ये तो मीनिंग था एज पर माई, मैंने खुद लिख दिया इसको आपको समझाने के लिए। अभी सेक्शन 4, कुछ सेक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि ना अभी ये जर्नल स्टडी नहीं है, एक एक्ट है, तो एक्ट में सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है। देखते हैं वो डेफिनेशन में याद होती है नहीं होती। 1 मार्क में ही आ सकता है, थ्योरी 1 मार्क करके लिए बस आपका, इसलिए आपको बस जस्ट उसको अंडरस्टैंड करना है। पार्टनरशिप क्या है बोलो? इज ए रिलेशन। कौन सा रिलेशन है ये? क्या ये ऐसा रिलेशन है कि अगर मैं पार्टनर हूं तो मेरा ब्रदर भी पार्टनर बन जाएगा? business. हाँ, ये बिजनेस रिलेशन है। अगर इस फॉर्म में, इस बिजनेस में मैं पार्टनर हूं तो मेरे फादर भी नहीं पार्टनर रह सकते। वाइफ इज नॉट पार्टनर, दे हैव नो राइट इवन टू एंटर, इवन टू यूज एसेट्स, इवन टू चेक द अकाउंट्स, क्योंकि मैं हूं, बस मैं सब कर सकता हूं, क्योंकि ये रिलेशन एक एग्रीमेंट बेस्ड है। अगर वो एग्रीमेंट ए और बी में बना है तो सिर्फ ए और बी ही पार्टनर्स हैं, उनके बीच में वो रिलेशन है, उनके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। तो ये रिलेशन ब्लड रिलेशन नहीं है, फैमिली रिलेशन नहीं है, ठीक है? ये क्या है? एक बिजनेस रिलेशन है, एग्रीमेंट बेस्ड होता है वो भी। हम दो लोगों के बीच में क्या बना है? एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स। कितने हो सकते हैं अभी बोलो? 2 और मोर। इतने पता भी तो हमें, जिन्होंने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है वो अभी नहीं बोलेंगे। बिटवीन पर्सन्स 2 और मोर who have agreed to share profits of a business carried on by याद होगा सबको? चेक करते हैं, बोलो। Carried on by one or any कुछ लोगों को फायदा हो गया होगा कि ओम बुरु ऐसा बोल दिया चल गया वो ना, चाहे नहीं भी आता था। ओके, तो अब इन वर्ड्स के ऊपर हमारे पास बहुत डिटेल में डिस्कशन होगी। उससे पहले अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा पॉइंट व्यू है यहाँ पर। आपने ये किया है +1 में ना, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, या जैसे अभी भी मैं +1 में जब टीच करता हूँ तो मेरा फर्स्ट लेक्चर ये होता है। आप भी सब लोग +1 में थे, याद है आपको? हम यहाँ पे 2 पर्सन बनाते हैं, एक ओनर होता है और एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ओनर रियल है, बिजनेस आर्टिफिशियल है। इसने ही इसको क्रिएट किया है, मैंने इस इंस्टीट्यूट को क्रिएट किया है। अब बोलोगे सर इंस्टीट्यूट का नेम है बंसल कॉमर्स क्लासेस, मैंने क्रिएट किया है पर मेरा नाम कहीं नहीं है। फीस आपने किसको दी? बंसल कॉमर्स क्लासेस को। अब कुछ भी डिस्प्यूट होता है बंसल कॉमर्स क्लासेस से वापस ले लोगे, मेरा क्या लिंक है? तो आप अगर कुछ भी डिस्प्यूट करते हो तो बंसल कॉमर्स क्लासेस का नाम आएगा वहां पे, ठीक है? उसको रिप्रेजेंट मैं करूंगा, आई एम जस्ट ए रिप्रेजेंटेटिव। तो इसलिए हम ये मानते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मी ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। ओनर बिजनेस से सेपरेट है, ये दोनों सेपरेट है आपस में। जो बिजनेस ओनर ने स्टार्ट किया वो है तो उसी का, बट अकाउंटिंग एंट्रीज बनाने के लिए हम ओनर के पैसे को भी क्या बोलते हैं? कैपिटल। वी कॉल इट कैपिटल, कि वो कैपिटल है और वो बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी है। अगर बिजनेस और ओनर अलग अलग ना होते बेटा, फिर तो मेरा पैसा कभी भी लायबिलिटी नहीं होता। आपके पास ही तो फर्स्ट आंसर है कि सर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ही है अकाउंटिंग क्वेश्चन कि कैपिटल इज ऑलवेज ए लायबिलिटी। इन दिनों में लास्ट ईयर आपका बैच स्टार्ट हुआ था 23 अप्रैल को +1 का, याद है? वहाँ अकाउंटिंग क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता था। तब फर्स्ट टाइम कैपिटल सुनते थे, लायबिलिटीज, एसेट्स। नाउ यू आर वेरी यूज्ड टू, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स ने आपको यूज्ड टू बना दिया। नाउ यू नो कि कैपिटल ओनर की है, बिजनेस ओनर का है, बट स्टिल हम ये मानते हैं कि कैपिटल एक बिजनेस के ऊपर क्या है? और हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे बिजनेस के पॉइंट व्यू से करेंगे। ओनर भी एक तरह का क्रेडिटर है बिजनेस का, जिसने पैसा दिया है और बदले में उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और कल को वो अपना पैसा वापस भी ले सकता है, ड्राइंग्स भी कर सकता है। बट एक नया पॉइंट ऑफ व्यू सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब लॉ की बात आ गई ना, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कल को बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया तो
बताओ बच्चों क्या होगा फिर? Partners have unlimited liability. यस, पार्टनर्स हैव ए अनलिमिटेड लिमिट। अगर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया, देखिए क्या होगा। बिजनेस 10 लाख का है, पंगे बड़े बड़े लेते हैं, 50 लाख के लेते हैं पंगे। अब हमने 10 लाख रुपीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल मीन्स, और मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ 50 लाख की हैं, डील्स कर रहा हूँ वट एवर, लॉस हो गया उसमें। तो जैसे ही लॉस होगा, तो वो लॉस मेरी कैपिटल को तो जीरो कर ही देगा। से 30 लाख का लॉस हो गया किसी डील में, अपनी हैसियत से बाहर डील कर ली और वहां लॉस हो गया, वो लॉस आपकी कैपिटल को तो खत्म कर ही देगा पहले ही। बेटा आपको दिख रहा है, इधर नहीं, इधर से थोड़ा सा। बट उसके बाद बाकी के बचे 20 लाख रुपीज कौन पे करेगा? 10 लाख तो कवर कर लेंगे बिजनेस, बोलेंगे बेचो एसी, एसी सेल करो, फर्नीचर सेल करो, सब सेल करो, हो गया बिजनेस, बंद हो गया, ऑप्शन लगी बिजनेस की, सारी एसेट बिक रही है, आप तो वहां पे एसी खरीदने जा रहे हो कि बिजनेस, मैंने सुना बिजनेस बंद हो रहा है आपका, तो एसी सेल कर रहे हो, तो आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा एसी, सेकंड हैंड चलता तो है बढ़िया। तो ऐसे सेल होता है सब चीज़ें। आई विल क्रिएट समथिंग कि कुछ फनी भी रहे, ताकि नहीं तो ये बोरिंग हो जाता है लेक्चर आपके लिए। आपको उससे समझना है कि मैं उसको, उसके पीछे आइडिया क्या है, वट एवर आई वॉन्ट टू रिकोगनाइज, या उसको मैं आपको क्या याद करना चाहता हूँ, है ना। और फेस सीरियस मत रखिए, स्माइल रखिए फेस पे, और रिलैक्स रखो, बहुत कुछ नहीं है, ये लास्ट डे थोड़ी ना है, फर्स्ट डे, कल कोई फाइनल एग्जाम नहीं आपका। तब भी स्टडी वैसी रहेगी, सिचुएशन वही रहेगी। अब यहाँ पर जब इंसॉल्वेंट हो जाएगा बिजनेस, ओके कम टू पॉइंट, 10 लाख तो खत्म, 20 लाख रुपीज कौन पे करेंगे? पार्टनर्स। अब पार्टनर्स के पास 20 लाख रुपीज अगर है तो वो पे कर देगा। वो कहाँ से पे करेगा? अपनी प्रॉपर्टी से। नहीं है तो बोलेंगे बेचो फिर अपना प्रॉपर्टीज। मतलब पहले लॉस आपके बिजनेस में से कवर होगा, फिर वो लॉस आपके घर तक पहुंचेगा। आपके घर की जितनी भी आपकी प्राइवेट एसेट्स हैं, वो सारी की सारी, वो सारी सारी एसेट्स को बेचा जाएगा। यू कांट से ये तो मेरे घर का एसी है, ये तो मेरी अपनी कार है, अगर वो आपके नाम पे है, अगर वाइफ के नाम पे फिर नहीं, अगर ब्रदर के नाम से फिर नहीं। तो पार्टनर्स बड़े स्मार्ट होते हैं, वो जो कुछ खरीदते हैं घर में वो अपने नाम से नहीं खरीदते, उनको पता है कल को अगर मेरा बिजनेस बंद हो गया ना, तो ये चीज तो जाएगी। अब आपके घर में गाड़ी है, बोलेंगे सर ये तो ब्रदर के नेम से है, तो उसको टच भी नहीं करेंगे। ये कौन है? पुलिस, कोर्ट जो आपके घर पे पहुंची है। जो आपके नाम से है ना, उसको वो टेक ओवर करके उसको बेचेंगे और लॉस कवर करेंगे। तो पहले आपको ये समझना है कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो क्या है? अनलिमिटेड। ये एक सेकेंड केस स्टडी बनता है आपके ऊपर, आपके लिए। अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, LLP। Limited हाँ, liability partnership. वो आपके सिलेबस में जैसे एक एज ए इंट्रो है तो हमने नहीं रखा उसको। तो इंडिया में भी बहुत लिस्ट है यहाँ पर कि LLP हो। वहाँ पर क्या होता है कि पार्टनर्स लिखवा लेते हैं पहले ही कि अगर लॉस हुआ तो हम इस इतना ही पे करेंगे अपनी प्राइवेट एसेट्स में से। फिर वो डील, वो सब कुछ दिखाना पड़ता है सामने वाले पर्सन को जब कोई डील होती है, कि आप ये समझ के चलो कि अगर लॉस हुआ तो हम इतना ही पे करेंगे। बट वो आपका एक नहीं है अभी आपके लिए, तो यही है इन जनरल पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। तो अब हम इससे क्या समझा, बहुत कुछ बोल दिया मैंने, लेकिन इसे समझा क्या बेटा? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो अलग अलग लोग हैं, बिजनेस अलग है और प्रोप्राइटर अलग है। लेकिन अगर लीगली बात करें, जब बात कोर्ट में पहुंचेगी, तो जज पता है क्या बोलेगा? बुलाओ ओनर को। वो ये बोलेगा कि बुलाओ स्कूल को, बुलाओ कॉलेज को, बुलाओ LG कंपनी को। ऐसे नहीं बोलेगा वो, बोलेंगे उनके मैनेजमेंट को बुलाओ, उनके ओनर को बुलाओ। तो लीगली आई कांट से कि बंसल कॉमर्स क्लासेस अलग है और मैं अलग हूँ। लीगली वी आर वन ओनली, चाहे वो सोल ट्रेड है या पार्टनरशिप है। क्लियर हो गया? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेपरेट हैं, क्योंकि हमें एंट्रीज पास करनी होती है, जहाँ पे लिखना होता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वो तभी तो पास करेंगे अगर दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। पर लीगली जब बात आएगी तो वी आर वन ओनली। बिजनेस का लॉस किसका लॉस है? पार्टनर्स का। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेम नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो इसमें कुछ अभी नोट करने की नीड नहीं है। अब हम डिटेल में आते हैं, जो हमने अभी डेफिनेशन रीड किया ऊपर, एसोसिएशन, उसको समझते हैं। दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट। ऐसे नहीं कि कोई भी पार्टनर बन गया हमारा, चलते फिरते वो शॉप पे आके बैठ गया कि आई एम योर पार्टनर, बोलेंगे कहाँ है आपका नेम एग्रीमेंट में? जिसका नेम एग्रीमेंट में है वही हमारा क्या है? पार्टनर है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट हम आपका साथ साथ लेते रहेंगे। 11th का पैटर्न अलग रहता है,
तब आप बिल्कुल न्यू होते हो और आपके लिए कॉमर्स अकाउंट्स न्यू है, वहाँ ज़्यादा एकदम से टेस्टिंग नहीं शुरू हो सकती। बट अभी तो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, आपको अकाउंट्स आती है 11th की, अब एक टॉपिक और आपने ऐड कर लिया, तो अब जो टेस्ट होगा उसमें पूछा जाएगा आपसे एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है। नंबर 1 रिटन या ओरल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट ये कोई लॉ से क्रिएट नहीं होगा। अब जब हम कंपनीज एक्ट में जाएंगे आगे, कंपनी पढ़ेंगे वॉल्यूम 2, वहां लिखा होगा कंपनी इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ अ लॉ। कंपनी को एक लॉ क्रिएट कर सकता है, हम नहीं क्रिएट कर सकते। आपको कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी तो जाके क्रिएट होगा। पार्टनरशिप पता है क्या है, दो फ्रेंड चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते आइडिया आ गया कि चल ये स्टार्ट करते हैं, होगी पार्टनरशिप स्टार्ट। बस दिवाली आ रही है, दिवाली लाइट्स ले आते हैं चाइना से, बड़े लेवल का अगर कुछ करना है, डायरेक्टली आप चाइना जाओ, वहाँ से लाइट्स, वहाँ पे कंपनीज हैं, वहाँ पे डील करो, उनको बोलो कि आप लाइट्स भेज दो, स्टैंप लगा देना बंसल लिमिटेड कुछ ऐसा, तो लाइट्स बंसल लिमिटेड के नाम से आ जाएंगी। तो हमने वो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बस होगी पार्टनर स्टार्ट। चाय पीते पीते बातें भी होगी, तू इतना पैसा लगाएगा मैं इतना लगाऊंगा, प्रॉफिट लॉस इस रेशो में बांटेंगे, स्टार्टेड, पार्टनरशिप स्टार्टेड। कोई लॉ नहीं चाहिए, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, तो हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने आपस में दो बातें कर ली तो बन गया पार्टनरशिप। बस ये है कि वो याद रखो, यहाँ डिस्प्यूट्स होंगे, चाय पीते पीते तो बहुत कुछ बोल दिया, बाद में भूल जाते हैं हम, फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं तूने ये कहा था कि प्रॉफिट हाफ हाफ होगा, ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं, बट वो तो लेटर ऑन सिचुएशन है। हम विदाउट एनी एग्रीमेंट पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, विदाउट मीन्स ओरल, रिटर्न में नहीं किया हमने, बात तो होगी ना, ऐसा नहीं कि कोई भी पार्टनर बन गया उससे बात तो ही होगी ना, बट वो रिटर्न नहीं है, वो जस्ट एक ओरल है। रिटर्न करोगे तो बेटर है। सेकंड, उसमें क्या फिक्स होगा, आपस की अंडरस्टैंडिंग, किसके क्या राइट्स हैं ड्यूटीज हैं, लाइक दैट, हम बिजनेस क्या स्टार्ट कर रहे हैं, कब खत्म होगा, कब बंद होगा, कितनी ड्यूरेशन का है, लाइक दैट। ये इंपॉर्टेंट नहीं सर, सब कुछ ये बाद में भी आएगा। रिटर्न एग्रीमेंट अगर हुआ, दैट्स इंपॉर्टेंट, जिसपे फिर अगेन क्वेश्चन आएगा थ्योरी का। रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, बोलो। इट मीन्स अगर एग्रीमेंट ओरल है तो फिर वो एग्रीमेंट है, अगर वो रिटर्न है तो वो पार्टनर डीड है। गॉट इट। तो रिटर्न को ही हम डीड बोलेंगे। इक्वली गुड है दोनों। जैसे मैंने आपको, जैसे हम बोला सर कल किस टाइम पे आने, तो मैंने बोला बेटा कल आप मंडे ऑर्डर बैच में हो, अब आपको इस बैच में नहीं आना, आपको कल अपने बैच में आने, फ्राइडे आपका बैच होगा 2:30 to 4। मैंने ओरली बोल दिया, इक्वली गुड। अब मैं भी नहीं डिनाई करूँगा, आप भी नहीं करोगे, और आप कल लोग जितने भी हो आप आगे, कल बात शुरू होगी। अब कल जब आए मैं बोलूँ बेटा मैंने कब कहा, मैं तो कहा ही नहीं, मैं मुकर जाता हूँ, मैंने तो कहा ही नहीं आपको, अब आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, वहाँ डिस्प्यूट हो सकता है। अगर मैं और आप दोनों इस बात को याद रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, उस पर चलेंगे, तो वो भी इक्वली गुड। अब बोलो सर आप ना बाद में मुकर जाते हो, हमें रिटर्न में दे दो फिर, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कि टुमारो यू हैव द क्लास 2:30 to 4 फॉर द मंडे ऑल्टरनेट स्टूडेंट्स ओनली। उसमें ट्यूसडे स्टूडेंट्स आना चाहे तो आ सकते हैं फॉर द रिवीजन, कुछ भी करना चाहे, लेकिन वो मंडे बैच है। अब रिटर्न में चला गया, वो एक प्रूफ हो गया, अब आई कांट डिनाई कि बेटा मैंने कब कहा, बोलो सर आपका मैसेज आया हुआ है देखो लिखा हुआ है इसके अंदर, बस ये फर्क है इसमें, वो एक रिटर्न प्रूफ है, दैट इज कॉल्ड डीड। गॉट इट। अब आपको कहीं भी थ्योरी याद नहीं करनी है, बस हो गया, 1 पेज इज ओवर, आपकी लाइफ के लिए खत्म हो गया। मैं नोट्स आपको इश्यू करूंगा रीडिंग के लिए, बट अब आपको कुछ नहीं करना है, फुल लाइफ आपके लिए ये नॉलेज है, बस एक जितनी बातें डिस्कस हुई याद नहीं करनी है। दैट इज कॉल्ड रिलेशन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज बेस्ड अपॉन अ रिलेशन, एसोसिएशन, एग्रीमेंट, सारे वर्ड्स एक ही हैं। नंबर 2, अब आएगी इंपॉर्टेंट बातें। सेकंड, पर्सन्स बेटा, 2 और मोर पर्सन। अच्छा आपके उसमें टेंडेंसी कोड आ रहे हैं ना, तो वो जो भी आपके सारे आपका नेम जो भी पुट करोगे, लिख देना नेम के साथ मंडे, दैट इज जब आप एक्टिवेट होती है ना, तो कल नोट्स भी उसी के अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएंगे। अरे कहाँ है टेंडेंसी कोड, हाँ बेटा फिल करके ना बीच में जैसे टाइम मिलता है फिल करके आप आगे पास करते रहिए। ये आपकी आज की अटेंडेंस भी है, और जो नंबर्स आप प्रोवाइड करोगे व्हाट्सएप नंबर, वो मोबाइल ऐप पे भी जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी सब कुछ स्टाफ अपने कर लेगा,
आज का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आपके पास मोबाइल ऐप पे भी आ जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देंगे शुरू में, तो जब तक मोबाइल ऐप पे आप सब लोग नहीं आते, ठीक है। तो वो सब अपनी डिटेल में वहाँ पे फिल करना है, बस नेम के साथ लिख देना कि मंडे या ट्यूसडे, सो दैट ये बैच, हम इतने स्टूडेंट नहीं चाहते एक बैच में, बैच स्प्लिट हो जाएगा फिर इजीली। नाउ अब देखिए 2 और मोर पर्सन का मीनिंग क्या है, ये तो पता है हमें, मिनिमम कितना होगा 2, एक से तो पार्टनरशिप बनेगी नहीं, ओके। सेकंड, इसके ऊपर ना एक और एक्ट है, हम बोलेंगे एक्ट पे एक्ट, एक्ट पे एक्ट अभी चलता रहेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो कहता है इन लोगों के अलावा सब लोग पार्टनर बन सकते हैं, ये लोग नहीं बन सकते, जैसे तुम लोग नहीं बन सकते क्योंकि आपकी एज 18 से कम है, आप सब लोग माइनर हो, मेजर हो जाओगे अगले साल आई गेस ना, क्योंकि ऑलमोस्ट हम ग्रेजुएशन में मेजर हो जाते हैं, तो अभी आप 18 के आसपास ही हो, अभी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज आप कौन हो, माइनर, आपका एज 18 से लेस है। माइनर के लिए हमारे इंडिया में रूल्स ही डिफरेंट है, बट हाँ माइनर भी पार्टनर हो सकता है, वो कहीं आगे भी लिखा होगा। अगर माइनर पार्टनर बनेगा तो एक कंडीशन पे बनेगा, वो ऑब्वियस कंडीशन है चाहे लिखो चाहे ना लिखो, यस। लोग कहते हैं कि बच्चे की जान थोड़ी ले लोगे, बच्चा है वो तो अभी माइनर है, उसको क्या समझ है, उसने वैसे ही हाँ कर दी, पार्टनर बन गया, पैसा लगा दिया, तो लॉस नहीं मिलेगा उसको, लॉस आपका है, प्रॉफिट सबका है, लेकिन लॉस माइनर का नहीं है। अब 3 पार्टनर में से एक माइनर है, वो बचेगा, लॉस उसको नहीं मिलेगा, बाकी का लॉस उन 2 बेचारों को मिल जाएगा। तो कोई भी माइनर को पार्टनर बनाता ही नहीं है। अगर आप किसी को बोलोगे कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बोलेगा अभी रुक जा 1 साल, माइनर से मेजर हो जा, फिर तेरे से बात करेंगे, अभी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर वो उसकी बेसिक नीड्स के लिए तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता हाँ, वो भी कर सकता है, बट वो कंडीशन रहेगी कि उसको लॉस कभी नहीं मिलेगा, वो क्योंकि वो तो एक्ट में लिखी हुई है कंडीशन कि क्योंकि क्वेश्चन आता है कैन माइनर बी ए पार्टनर, अब बोलोगे यस, माइनर कैन बी ए पार्टनर बट ओनली फॉर द प्रॉफिट्स, नॉट फॉर लॉसेस। दूसरा, पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, जैसे कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, उन्होंने बैंक करप्ट हो गया, इंडिया से भाग गया किसी बात पे, वापस नहीं आ रहा, उसने लाइबिलिटीज देनी है, हम ढूंढ रहे हैं उसको, तो लॉ उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा कि कोई भी बंदा इस बंदे से डील नहीं करेगा, कोई भी पार्टी। तो या और भी रीजंस हैं, कोई क्रिमिनल है, कोई मर्डर करके भाग गया इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया चला गया, वट एवर जो भी कुछ है, आपके ऊपर केस चल रहा है, आप जेल के अंदर हो, कुछ भी ऐसा है, अगर आपने उस टाइप का क्राइम किया है तो लॉ आपको क्या कर देगा, डिस्क्वालीफाइड, आप किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर पाओगे, करते हो उसको नॉलेज नहीं है वो अलग बातें सारी, बट लीगली आपको अलाउड नहीं। ये कौन है ये बताओ। है। हाँ, और अनसाउंड माइंडेड का मीनिंग होता है कि अबनॉर्मल बिहेवियर भी उसमें आता है, जैसे एकदम से बैठे बैठे आप पागल हो जाते हो, एकदम से गुस्सा आ जाता है आपको, हाँ वो भी कह सकते हो। जैसे आप बिजनेस, आप पार्टनर हो किसी के, कस्टमर ने जरा सा बात बोल ली, आपने उठा के उसके सिर पे कुछ अब ऐसे लोगों को पार्टनर नहीं बनाना है, क्योंकि वो दे कांट कंट्रोल दैट थिंग ना, कि हमें गुस्सा आता है तो हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ऐसा नहीं कि हम एबनॉर्मल हैं, बट एबनॉर्मल बिहेवियर भी कहीं ना कहीं अगर हम करते हैं, तो फिर जो दूसरा पार्टनर है उसको पता है लॉस हो रहा है अभी, ये रियल लाइफ में होता है बेटा, 3 पार्टनर है ना, उसमें बाकी 2 ठीक हैं, कूल हैं, कस्टमर से बात करने का उसको पता है कैसे करना है, अब एक बंदा है उसको पता नहीं है, तो वो कस्टमर भगा देता है, हम बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, हम लॉजिकली बात कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि नहीं लेना तो मत लो प्रोडक्ट, जाओ जाओ हमें बेचना नहीं आपको, अब वो फिर बिजनेस कैसे चलेगा, लॉस तो सबको हुआ ना, अगर वो सेल हो जाती तो प्रॉफिट होता। तो फिर ये 2 पार्टनर जो है ना, वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देते हैं कि इस पार्टनर को रिटायर कर दिया जाए, क्योंकि वो खुद से तो हो नहीं रहा, वो कहता मैं नहीं जाऊंगा इस बिजनेस में से, तो उसको निकाला जाएगा फिर। अगर वो पहले से अनसाउंड माइंडेड है तो वो पार्टनर बन नहीं सकता, दोनों केस हैं, बाद में भी तो हो सकता है ना वो। तो अगर वो अनसाउंड माइंडेड, लो बोलेगा प्रूव करो, प्रूव करो कि कौन है अनसाउंड, फिर आप रिकॉर्डिंग जरा करके कोर्ट में भी दोगे सर देखो ये इस तरह से ऐसा बिहेव करता है, प्रूव आपको करना पड़ेगा, या कोई पहले से है तो नहीं करेगा। अब ये तो हमें याद हो जाता है, पर ये लिखा कहाँ है, 87, ये भी हमने कॉपी किया हुआ है ब्रिटिश का एज इट इज। तो
अब क्वेश्चन आते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, अब बोलते पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ पार्टनरशिप एक्ट में, कुछ लिखा ही नहीं वहां, तो बस टाइम ही नहीं था जिसने बनाया होगा ना, 2 और मोर ओके डन, बस कुछ नहीं लिखा आगे, बाकी अलग अलग एक्ट्स के अंदर से बातें आ रही है सामने। अब है सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जिसपे ऑलवेज क्वेश्चन आएगा, स्कूल के अंदर भी आपको मिलेगा क्वेश्चन, कंपनीज एक्ट। जहां बेटा पार्टनरशिप ओवर होती है ना, वहां से कंपनी स्टार्ट होती है। तो कंपनीज एक्ट जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वो बोल देगा कि पार्टनर्स कहाँ तक हो सकते हैं। से सपोज ये जैसे ये क्लासरूम तुम देख रहे हो, हमारा एरिया कहाँ तक है, हमारा एरिया कहाँ तक है क्लासरूम का, इन वॉल्स तक है ना। अगर मैं इन वॉल्स को थोड़ा सा भी आगे लेके जाऊं तो वो किसी और का एरिया है। तो मेरी लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी, मेरी लिमिट मैंने प्रिस्क्राइब नहीं की, मेरे नेबर ने कर दी कि सर आप यहाँ कहाँ बना रहे हो वॉल, ये तो हमारा एरिया है। 1 इंच भी आप अपने पड़ोसी की नहीं यूज कर सकते। देखोगे अपने डिस्प्यूट्स होते हैं ना नेबर, 1 इंच भी, मतलब जरा सा भी आपने वॉल अगर उधर बना ली तो बोलेंगे सर ये तो हमारा एरिया है, अपने एरिया में जो मर्जी करो। तो दैट्स वाई पार्टनरशिप का एरिया क्या है, ये पार्टनरशिप डिसाइड नहीं करता। कौन डिसाइड करता है, कंपनी एक्ट। उसका एक सिस्टम बताता हूँ। 2 और मोर में एक लिमिट ऐड होगी 50, मैक्सिमम 50 पर्सन्स मिलकर पार्टनरशिप फ्रेम कर सकते हैं। ये बात किसने बोला है, ये कंपनीज एक्ट ने, सीधा नहीं बोला, कंपनीज एक्ट ने ऐसा डिसाइड करने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। किसको दिए, आज जब मॉर्निंग में सीयूटी का स्टार्ट हुआ तो उसके सबसे पहले यही बात है, क्योंकि वहां पे तो अब सीधा एडवांस क्वेश्चन आएंगे, वो लोग 1 ईयर पढ़ चुके हैं 12th का, पूरा 12th का अकाउंट्स बेटा सीयूटी में आएगा आपको, सीए में तो +1 +2 दोनों का आता है। तो वहां पर अगेन ये बात रिवाइज हो रही थी, क्योंकि यहाँ ना अब 100 आने वाला है जो आपको कंफ्यूज कर देता है। कंपनीज एक्ट से, कंपनीज एक्ट 1956 में बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस, फिर उसको चेंज किया गया, एक ड्रास्टिक चेंज हुआ था 2013 में, उसका वही आपका सारा कुछ चेंज हो गया, शेयर्स, डिवेंचर्स, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, सब चेंज हो गया उसके अंदर। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम 2 सबसे लेट आता है मार्केट में, क्योंकि अभी भी कुछ चेंज होगा तो वो उसमें डाला जाएगा, वॉल्यूम 1 और 3 आ जाते हैं। तो अब तो ये नहीं बोलना, हम बोलेंगे कंपनीज एक्ट 2013 empowers the central government, empowers the central government to decide about the maximum limit up to 100। सिर्फ 100 कुछ है नहीं है, अप टू द लिमिट है। जैसे जैसे आपको जब आप क्लास में एंटर करते हो, यहाँ से एंटर करते हो, तो आपके पास राइट है कि आप वहां तक जाके बैठ सकते हो, यहाँ भी तो बैठ सकते हो। अब अपने स्कूल का चॉइस है, किसी को होता है कि एंड, मतलब अगर मैं इस क्लासरूम को और आगे बढ़ा सकता हूँ, वो वहीं जाके बैठेंगे। अच्छा इसका आगे ट्री भी है, आप चाहो तो ट्री पे बैठ जाओ और पीछे हो जाएगा, टीचर से जितना दूर रहना चाहते हो रह सकते हो, तो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो एक लिमिट है ना आपकी यहाँ पे। अब ये जो ट्री तक नहीं जा सकती, लिमिट आ गई, वॉल आ गई ना बीच में, तो इट मीन्स आपको लिमिट दे दी वहां तक की। ठीक है, लेकिन आपका चॉइस है, आपने तो फर्स्ट स्टेप भी ले लिया बैठने के लिए। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना उस लिमिट को यूज कैसे किया, उन्होंने 50 तक यूज कर लिया बस, प्रेजेंटली 50 तक है, फ्यूचर में 60 हो सकता है, 78 हो सकता है, वट एवर, अभी आपके लिए कुछ नहीं है वो। 100 एक लिमिट है जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। अगर वो ये पूछते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां तक डिसाइड कर सकती है, तो आपका आंसर होगा 100। किसी भी एमसीक्यू का केस स्टडी का आंसर होगा 100। बट अगर बोलेंगे कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, 50, क्योंकि प्रेजेंटली 50 है। आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखाता हूँ। आपका फ्यूचर यहाँ पर देखिए, ये सीयूटी की हमारी वर्कशीट है। देखो बेटा, क्योंकि वहां तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही आपके लिए है, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, आंसर दीजिए। देखते हैं, मैं सीयूटी का टेस्ट आज ही ले रहा हूँ। देखा रॉन्ग आंसर हो गया। मैंने अभी बोला ना 100, आप लोग 100 ही बोलोगे, ये पता नहीं वायरस क्यों है,
स्टूडेंट्स के लाइफ में। यस, दैट्स द राइट आंसर, 46 इज द राइट आंसर। क्योंकि मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती, चलो वो कोई बात नहीं, 4 पार्टनर लिखा है, किसी ने नहीं पढ़ा, बट चलो अभी 50 तो बोलो, आगे हम डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी तक जो पार्टनर्स एडमिट हो सकते हैं, ठीक है, एडमिटेड कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, ऑलरेडी 4 हैं। जैसे हमारे बैच में 25 स्टूडेंट्स एडमिट हो सकते हैं, तो 20 ऑलरेडी हैं, तो 5 और आ सकते हैं। क्लास में तो कैपेसिटी 50 की होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो हम कभी कभी अपनी कंबाइंड क्लास लगाएंगे, टेस्ट लेंगे, कैपेसिटी तो इससे ज़्यादा चाहिए, इससे बड़ा क्लास होगा तो और अच्छी बात है। बट बैच की एक स्ट्रेंथ डिसाइड कर दी जाती है, ताकि उसके बाद सेकंड बैच बन सके, थर्ड बैच बन सके, लाइक दैट। तो अब वो लिमिट 50 है, ऑलरेडी अगर पार्टनर 4 पार्टनर्स हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, 46 और ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका सीयूटी अंडर ग्रेजुएशन जो आपका होता है पेपर, अब देखो जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो कहाँ तक जाने वाला है, फिर आप इसको किसी, क्योंकि ये सब चीज़ें यूज़ होंगी आगे रख के। तो आज अगर आप 100 लेके चल रहे हो, ये तो पहले सीबीएसई में मार्क्स कटवा लोगे अपने, फिर वहाँ भी कटवाओगे। मैंने अभी तो बोला 100 है ही नहीं कुछ, दैट्स वाई मैं आपको एक प्रैक्टिकल सीन बताया कि हम गलती कर देते हैं। तो अब इसको पढ़ो, आपको समझ आएगा मैंने क्या बोला अभी। हो सकता है आपको समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लो, कोई ऐसा नहीं है। बात आ गई समझ? तो वो तो कंपनीज आर में सॉरी तो कंपनीज रूल नहीं, हम्म? कंपनीज रूल नहीं। नहीं वो पता तो क्या है ना, कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 464 है, क्या लिखा है, सेक्शन 464 empowers the central government, या गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, टू बी मैक्सिमम लिमिट फॉर पार्टनर्स इन अ फर्म बट नॉट मोर देन 100। अब ये बात सेक्शन 464 तो बहुत बड़ा है ना बेटा, जैसे एक पेज होता है, पेज में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो वो एड्रेस है, उस सेक्शन के अंदर कहाँ लिखा हुआ है। सेक्शन 464 तो 10 पेज का है, तो उसके अंदर कहाँ लिखा है बात, अगर ढूंढना चाहो आप, कंपनीज एक्ट आपको मार्केट से मिल जाएगा या ऑनलाइन मिल जाएगा, तो वहाँ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 एक बनाया गया, वहाँ ये बात डिसाइड हुई है, 2014 में डिसाइड हुई है, तो तब से वही चल रही है। अब मान लो इसका यूज चेंज होता, तो फिर ये रूल चेंज होता, तो बोलता अब ये रूल्स के लिए बनाया गया है ये सेक्शन ना, इस सेक्शन में रूल्स आएंगे, तो फिर आता, देखो, गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म दैट इज 50 वाइड मींस थ्रू रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014। कंपनी रूल बुक होगी एक तरह से, रूल बुक कह लो आप, एक पूरा सेक्शन हो गया उसके अंदर रूल बुक का। 2014 के बाद चेंजेस नहीं आई, तो 14 तक रुका हुआ है, इस साल आएगी तो 2025 आ जाएगा, नेक्स्ट ईयर के बच्चों को 2025 लिखेंगे वहाँ पर, वो ठीक ना, लीगली ये सब चीजें। अब आपको ये सब याद करना है। सेक्शन कौन सा है, 464 किसका, यस, पार्टनर्स एक्ट बेचारा बड़ा भोला भाला सा सोबर सा है, उसको नहीं कुछ पता, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, और उसके अंदर भी रूल 10, जिसका फुल पेज का नाम है कंपनीज रूल्स 2014। खैर ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाली, आपको 50 और 100 का ही डिसाइड करना होता है, बट योर स्कूल टीचर कैन आस्क कि सेक्शन डैश ऑफ डैश सेक्शन, वो फिलअप से क्वेश्चन होगी ना, तो डैश में फिर 460 को लिखना होगा, डैश रूल रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014, वो एड्रेस है, बुक चैप्टर, चैप्टर के पेज नंबर दिस, पैरा नंबर दिस, वो एड्रेस होता है। लीगल बुक बहुत होती है, लॉ की बुक बहुत बड़ी बुक होती है, तो उसमें एड्रेस बताना होता है, सेक्शन सब सेक्शन, वो जस्ट लीगल लैंग्वेज है, लिखा क्या है वो समझिए, वो गलत परसेप्शन नहीं आपके दिमाग में चाहिए। कंपनीज एक्ट ने किसको पावर की है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपको या मेरे को नहीं किया, किसको किया, क्या डिसाइड करने के लिए, मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक कर सकते हो, बट अभी तक कितनी की है, मतलब सारे क्वेश्चन 50 के हिसाब से होंगे, 4 हैं तो 46 अंदर है, और ऑलरेडी 10 है, 30 और हो सकते हैं, 30 और हो सकते हो, सॉरी 40 हो सकते हो, तो 50 माइनस 10 जो आंसर आएगा, राइट। चलिए आगे, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस, ये तो पता ही है, बिजनेस इलीगल नहीं होगा, लीगल होगा,
और किस मोटिव से करेंगे हम? प्रॉफिट मोटिव से हम इस बिजनेस को करने वाले हैं। ठीक है। फिर ट्रेड क्या होता है, प्रोफेशन, वोकेशनल कोर्सेज, वो सब चीज़ें हैं लिखी हुई हैं, बस ऐसे पढ़ लेना। दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट ना, कुछ भी हो वो लीगल होना चाहिए। जैसे मैं प्रोफेशन में हूँ, मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, मैं लॉ प्रोफेशन में हूँ, इफ़ आई एम एडवोकेट, बट वो लीगल है या नहीं? टीचिंग लीगल है या इलीगल है? तो बस वो देखना पड़ेगा कि अगर लीगल है तो मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में पार्टनर बन सकता हूँ, या किसी को हम पार्टनरशिप फ्रेम कर सकते हैं, या कोई ट्रेड वीज बिजनेस जैसे शॉप्स होती हैं। लेकिन लाइक स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, इस टाइप के बिजनेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते। किए तो हुए लोगों ने स्टार्ट, और वहाँ भी प्रॉपर पार्टनर्स हैं वो, है ना, लेकिन वो लीगली सामने नहीं आते कभी भी कि कौन लोग कर रहे हैं, पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बेटा आपको दिख रहा है लास्ट में, विजिबल है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? से देखते हैं कैसे करते हो आप। से एक बिजनेस को 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, एंड दे हैव 3 पार्टनर्स, ए बी सी। 50 लाउड है, लेकिन आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो 3-4 पार्टनर्स तक रहेंगे, मोस्टली 3 ज़्यादातर रहते हैं। और इनको एक रेशो दे दी 3:1, इसका मीनिंग समझते ना? ए के पास राइट ज़्यादा है, उसे प्रॉफिट का 3 पार्ट मिलेगा, और बी को 2 पार्ट, सी को, तो टोटल पार्ट कितने करने पड़ेंगे? तो सिंपल बात है कि किसी भी प्रॉफिट के 6 पार्ट्स करो, इक्वल 6 पार्ट्स करो, और उसमें से 3 पार्ट्स ए को दे दो। तो हम इस 120 को डिवाइड करेंगे 6a इंटू 3 विल बी गिवन टू ए, ये ए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब 120/6 आपको एक बार कैलकुलेट कर लेना है, कितना आ गया? 120/6 कितना आ गया? 20। बस वो आपने माइंड में रख लिया, ओरली कर लिया, वट एवर। 20 इंटू 3 60 ए को मिलेगा, 20 इंटू 2, या यहाँ पे इंटू 2 करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। मीन्स 6 से डिवाइड होना है, टोटल शेयर 6 है, उसमें से आपका शेयर 3 है या 2 है या 1। अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 20,000। ठीक। बट एक चीज जो मुझे इंट्यूशन हो जाएगी, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ पूछना चाहते हो। दैट्स वाई मैं नहीं तो मेरे लिए तो बेटर, मैं अब यही हार्डवर्क नेक्स्ट बैच में करने के बजाय आपको सबको क्लब करके एक ही बैच बना दूँ ना। बट उस पर क्या होता है, कई बार आप हेजिटेशन करते हो, हेजिटेशन नहीं करनी, चाहे आप 10 बच्चों में बैठ के पढ़ रहे हो या 50 में बैठ के पढ़ रहे हो, आपको आगे जब जाना है कॉलेज में या प्रोफेशनल कोर्स में, वहाँ आपको 100 के बीच में पढ़ना पड़ेगा। तो हेजिटेशन कुछ नहीं बेटा, ये कोई स्कूल नहीं है, ट्यूशन है, आप पे कर रहे हो इसके लिए, यू हैव फुल राइट। आपको बस अपना ये 2.5 किलो का हैंड ही ऊपर ऊपर करना है बस। कितना हैवी होगा ये हैंड, जैसे आप हैंड रेज कर दोगे ना, पूरी क्लास रुक जाएगी, आपकी तरफ कोई नहीं देखेगा, सिर्फ मैं देखूंगा और मैं पूछूंगा बेटा क्या डाउट है। और आपका कोई भी तरह का डाउट हो, और स्टूडेंट जानते हैं दे आर वेरी कंफर्टेबल, और नए स्टूडेंट जल्दी हो जाते हैं कंफर्टेबल, यहाँ कोई तरह का कमेंट कुछ नहीं आएगा कि ये क्या डाउट हुआ, फालतू की बात है ये, ऐसा कुछ नहीं। आप जो भी पूछोगे मैं उसको रिलेट कर दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपके मन में चल रहा है डाउट है, यू कैन आस्क, डोंट हेजिटेट, है ना। क्योंकि जो आज का डे है वो आज के डे है। प्लस टू जो है ना, हमारा जो सिलेबस है वो नवंबर तक ओवर होगा, तो 8 मंथ्स है आपके पास, और 8 मंथ्स ही हैं बस। हमारा ट्यूशन चलेगा 12 मंथ्स, मार्च तक। 11th क्लास का ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है, हम देखा ही ना, जनवरी के बाद आप लोगों ने आना बंद कर दिया, स्कूल स्टार्ट, आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए, तो 12th में यही डिफरेंस है, 2 से 3 मंथ्स का ड्यूरेशन जाता है, तो आपके साथ हम एंड तक है, बट आपके पास टाइम सिर्फ नवंबर तक का है। उसका रीज़न है, दिसंबर जनवरी में आप बिजी हो जाओगे, दिसंबर एग्जाम्स, प्री बोर्ड्स, वाइवा, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स, तब आपके पास टाइम नहीं होगा चीज़ों को सीखने का। हम लोग यहाँ पे शुरू कर देंगे क्वेश्चन बैंक, लास्ट ईयर के पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, आपको प्रोफेशनली बिल्डअप करने के लिए फाइनल टेस्ट शुरू हो जाएगी। नवंबर तक अगर किसी ने सिलेबस को कुछ भी छोड़ दिया, वेदर वो अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है या मैथ्स है, नवंबर तक आपका कोई भी स्किप हो गया, वो आपका परमानेंट लॉस बन जाएगा। तो आज का डे आज का ही है, ये डे कल वापस नहीं मिलेगा। यहाँ कोई रिपीट बैच नहीं बनता जाता, 12th में, प्लस में तो हम रिपीट रिपीट रिपीट, नवंबर में भी रिपीट बैच बना, वहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स को हमने एनरोल किया। लास्ट ईयर जनवरी में भी स्टूडेंट्स आए थे, सबसे लेट एडमिशन मधु की हुई थी,
तब भी 2 महीने में हमने सिलेबस करवाया इनको जितना भी पॉसिबल था। तो नवंबर के बाद तो पॉसिबल ही नहीं कि यहाँ सिलेबस हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, तो किसके लिए कोई वेट नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग तो आप देख ही सकते हो, इसलिए डे 1 से एक्टिव हो जाओ, पार्टिसिपेटिंग हो जाओ। आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि 6 से डिवाइड कैसे होता है, अगर आपका डाउट होगा। मतलब मेरी कोई लिमिट नहीं है, आपका प्रॉब्लम है तो मुझे सिखाना है, मैं फिर 6 12 2 आते हैं ऐसे सिखाऊंगा। तो आपको हेजिटेट नहीं करना है अगर आपको ये भी कोई डाउट है। आई नो ये डाउट नहीं है किसी का, just आपको कंफर्टेबल करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक के लेक्चर में कोई डाउट है किसी का? क्लियर है? इसको बोलते हैं प्रॉफिट रेशो। प्रॉफिट्स आपस में रेशो में डिवाइड हो जाएंगे, वो रेशो 2:1 होगी। अगर 2 पार्टनर्स है तो 2:1 हो सकती है। अगर लॉस होगा तो किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा, और इसी रेशो मिलेगा। इसलिए प्रॉफिट भी है और लॉस भी है। बाय स्पेशली अ पर्टिकुलर पार्टनर, सॉरी बट स्पेशली पार्टनर मे बी exempted टू बियर द लॉस। वो कौन है? एक तो माइनर है, माइनर के अलावा और वो लॉ हाँ, जिनका जो एलएलपी के अंडर आते हैं, जो माइनर हैं। नहीं, अनसाउंड माइनर तो पार्टनर ही नहीं बन सकता बेटा, तो फिर रॉन्ग परसेप्शन होगी ना यहाँ पे। आपने उसको exempted by the law। उसको आपने अलग तरह से समझा। मैं दोहरा आता हूँ बेटा उस पर, कोई बात नहीं। देखो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करेंगे, आज का लेक्चर थ्योरी के ऊपर है, क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन है फुल ईयर के लिए। ये लेक्चर हमें अब दोबारा इस पे नहीं आना, आज पूरी बातें समझनी है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, कहाँ लिखा था ये पॉइंट? सॉरी, कौन पार्टनर्स अजम्प्टेड हैं? ये ये तो है ही नहीं ना बेटा, पार्टनर ही नहीं बन सकते। सिर्फ माइनर के पास एक्सेप्शनल राइट है कि पार्टनर तो बन सकता है, और उसे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। वैसे वो पार्टनर भी नहीं बन सकता, पर अगर आप उसके साथ ये एग्रीमेंट कर लोगे कि कोई बात नहीं, तेरे को प्रॉफिट ही देंगे, डोंट वरी, बस एक पार्टनर बन जा हमारा, हमें पैसों की नीड है और तेरे पास पैसे हैं, वो लगा दे तू, तो पार्टनर बन सकता है, लेकिन ओनली फॉर द प्रॉफिट। इससे जब ये बात आएगी कि ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए पार्टनर कौन बन सकता है, तो माइनर का नाम भी आ सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वो वैसे वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो भी हम यहाँ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो पूरी पार्टनरशिप ही एलएलपी है, उसमें सारे पार्टनर्स ही एलएलपी के अंदर आते हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पर जो आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे ये टॉपिक आएगा। ये हमारे सिलेबस का लास्ट पॉइंट है, गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है, याद है किसी को? हम जब गारंटी देते हैं, व्हाट इज गारंटी? हाँ, हम एक गारंटी देते हैं कि सपोज अब आप माइनर नहीं हो और हम 2 लोग पार्टनर हैं। मैं आपके पास अप्रोच करता हूँ कि क्या आप मेरे पार्टनर बन जाओगे, तो आप मुझे बोल सकते हो पार्टनर बन जाऊंगा मैं भी, आई एम ऑल्सो सर्चिंग फॉर ए बिजनेस, बट ना मेरी कंडीशन है। क्या कंडीशन है आपकी? आप बोलोगे कि मेरे को ना मिनिमम प्रॉफिट ये चाहिए होगा, तो वहां आप बोलोगे लॉस नहीं चाहिए मुझे। आपके बिजनेस को प्रॉफिट कितना होता है दैट इज नॉट माई पॉइंट, मुझे मिनिमम प्रॉफिट की क्या देनी पड़ेगी? गारंटी। तो यू आर ए पार्टनर बाय गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये आपका लास्ट टॉपिक है आपकी बुक्स में, ये हमारी वर्कशीट में, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। उस केस में अगर सी गारंटीड प्रॉफिट वाला बंदा है, उसको लॉस नहीं मिलेगा, और प्रॉफिट भी मिनिमम वो मिलेगा, ज़्यादा तो मिल सकता है पर मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा, पर लॉस तो मिल ही सकता है। अच्छा, ये मैंने समझा दिया, तो दोबारा हम बात नहीं करें, आप पढ़ सकते हो बाद में भी, ठीक है। आज नोट्स नहीं मिलते थे आपको, क्योंकि हमें कुछ आइडिया नहीं था कि कौन कौन कैसे से आ रहे हैं सब लोग। तो ये आप जब नोट्स मिल जाएंगे कल आपको, तब इसको रीड कर लेना, राइट। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, समझा दिया, एजेंसी रूल है। लेकिन यहाँ पे एक चीज सर्टेन कर लो, पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट है बस। ए एंड बी आपस में जैसे ए प्रिंसिपल भी और एजेंट भी है। प्रिंसिपल कब है? जब बी उसको बाइंड करता है, काम तो बी कर रहा है पर वो किसको कर रहा है? बाइंड ए को। और ऐसे वाइस वर्सा है, जब ए कोई वर्क कर रहा है, डिसीजन ले रहा है, तो वो ए एजेंट बन जाता है, और वो किसको बाइंड कर रहा है? बी को, वो प्रिंसिपल बन जाता है। बाकी नोट्स आपकी रीडिंग के लिए आपको मिल जाएंगे। लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी बता दिया। नॉन ट्रांसफर इंटरेस्ट, ये क्या है? आप अपना शेयर किसी को सेल नहीं कर सकते, आप ये मैसेज नहीं कर सकते व्हाट्सएप पे
या मेल नहीं कर सकते कि कल से मैं पार्टनर नहीं हूँ, मेरा कजन आ रहा है चंडीगढ़, उसको पार्टनर बना दो, मैंने अपना इंटरेस्ट उसको भेज दिया, मैंने उससे पैसे ले लिए। नो, अगर सी को रिटायर होना है तो रिटायर हो सकता है, ये उसका राइट है, बट वो अपनी जगह पे डी को नहीं लेके आ सकता। अगर लाना है तो किसकी कंसेंट चाहिए, ए एंड बी की। आप अपना इंटरेस्ट मतलब अपना शेयर किसी को सेल नहीं कर सकते। आपसे पूछना पड़ेगा, ए और बी से पूछना पड़ेगा कि डी को मिल लो, बात कर लो, इफ यू एग्री मैं निकल जाता हूँ, मेरी जगह पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा, और वो मुझे पेमेंट कर देगा, तो जो मेरी कैपिटल है वो उसकी बन जाएगी। तो हो सकता है ऐसा, बट कंसेंट चाहिए उसमें भी। अब नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट बताता रहूँगा आपको मैं। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट कंपल्सरी। फॉर्म, अब यही बेटा साइड साइड सीट ले लेना आप। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है। जैसे आपको बताया था कंपनी कैसे क्रिएट होती है, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन लॉ क्रिएट होती है, लेकिन पार्टनरशिप बाय द ऑपरेशन लॉ क्रिएट नहीं होती। पार्टनरशिप को हम ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं, बट आपको फॉर्म की रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं है, बट अगर आप करवाते हो तो हमारे पास एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स, हम उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। मीन्स पार्टनरशिप फॉर्म विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रही है या वो रजिस्टर्ड है, समझो ना। विदाउट रजिस्टर्ड है तो लोगों को पता भी नहीं कि तुम बिजनेस कर रहे हो, रजिस्टर्ड तो आप इन्फॉर्म करते हो कि मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर ओपन कर रहा हूँ, तो मैं हम 3 लोग मिलके चलाएंगे, ऐसा ऐसा आपको एक एग्रीमेंट बनाकर, जिसको हम डीड बोलते हैं, आप उसको रजिस्टर करा सकते हो रजिस्टर के साथ, कंपल्सरी नहीं है। फॉर्म अनरजिस्टर्ड भी चलेगी, या भी रीड कर लेना, बहुत ईजी है। पार्टनर्स के राइट्स ही होते हैं, क्या होता है, प्रॉफिट लेना, बिजनेस की एसेट्स को यूज़ करना, बिजनेस के अकाउंट्स को आप चेक कर सकते हो, मतलब दूसरा पार्टनर आपको रोक नहीं सकता। जस्ट गो थ्रू, आप एक बार रीड करो, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। सॉरी, देखो अगर नया पार्टनर कभी बिजनेस में आएगा, फिर रिटायर होगा, सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। ओके, और कुछ। रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है कि जब कुछ भी चेंज आएगी पार्टनरशिप के अंदर, जैसे ए बी सी आर पार्टनर्स, बी की डेथ होगी, ही डाइड, तो अब नई फॉर्म बन गई, बी निकल गया या बी रिटायर हो गया, डेथ है या रिटायरमेंट है, चला गया ना वो, या ए बी सी तो ऑलरेडी हैं, अब एक नया पार्टनर आ रहा है, कौन, डी। यही बेटा आपका सिलेबस है। पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर करने में टाइम लगेगा आपको, जैसे आप इसको ओवर कर लोगे आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। एक यूनिट में कंप्लीट चैप्टर यही है, लॉन्ग चैप्टर है, जिसके 4 to 5 टेस्ट होते हैं आपके, हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेते रहेंगे, नहीं तो बहुत लॉन्ग चैप्टर है ना, हम आगे निकलेंगे तो ओल्ड टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डल हो जाएगा। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, आपके सिलेबस का नेम क्या है, आपके सिलेबस का नेम है, आपके अगर बुक में देखोगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन। गुडविल तो एक चलो एक अलग चैप्टर है, उसको किसी यूनिट का पार्ट ना भी माने, वो तो वैसे वो सेकंड यूनिट का पार्ट है, रिकंस्ट्रक्शन का ही पार्ट है, क्योंकि गुडविल की नीड कब है, जब कुछ चीज आएगी, जब बी रिटायर होगा तो वो अपना पैसा लेके जाएगा गुडविल का। क्या इस टॉपिक पे बात नहीं करते, गुडविल एक सेपरेट टॉपिक आएगा, वहाँ सारी बातें आएंगी। रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी इस चैप्टर के बाद, पूरा जो आगे का सिलेबस है उसी पे है। एनीथिंग चेंज्ड, किसी पार्टनर का नया आना, चले जाना, या कुछ भी ना होना, बस आपस में ये लोग क्या कर रहे हैं, रेशो चेंज कर रहे हैं। पहले रेशो क्या थी, 3:1, अब कहते हैं यार अब तो पहले था ऐसा, अब तो हम सब लोगों ने पैसा बराबर का लगा दिया, इक्वल पैसा लगा दिया, हम काम भी इक्वली करते हैं, सब कुछ है, कोई नॉन वर्किंग नहीं है, अब तो रेशो चेंज कर लो। अब उन्होंने इक्वल इक्वल कर ली, इक्वल इक्वल मतलब 1/3 1/3 1/3। अब आज से जो भी प्रॉफिट होगा हम
आपस में शेयर करेंगे इक्वली। 2 होंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा, 1/2 1/2। 3 होंगे तो 1/3 1/3 1/3, लाइक दिस। डन। और कुछ आपको लग रहा है इसमें से? ड्यूटीज की अगर हम बात करें, आप बिजनेस के किसी भी वर्क में हेल्प कराओगे, पैसा लेके आओगे, अगर कोई लॉस होता है, पार्टनर विल कॉम्पोजिट दैट लॉस। अगर उसके कारण होता है, आपके रॉन्ग डिसीजन लेने से अगर कोई लॉस होता है, तो फिर अगर वो बाइंड नहीं कर सकता किसी। तो अगर वो लॉस आपके कारण होगा, आपकी ऐसी मिस्टेक है जिस कारण से आप एजेंसी प्रिंसिपल को यूज नहीं कर सकते कि मैंने लॉस मेरे कारण हुआ है, कोई बात नहीं, सफर तो आपको ही करना पड़ेगा। वो जैसे आपने कोई क्राइम किया, आपके कारण फर्म की रेपुटेशन डाउन हुई, आपने किसी कस्टमर का कोई लॉस किया, कुछ भी ऐसा मतलब जो आपकी गलती से हुआ, तो वो लॉस आपको पे करना पड़ेगा। आप बिजनेस के हर एक पार्ट में पार्टिसिपेट करोगे जिसके आप पैसे भी नहीं मांगोगे। आप पार्टनर हो भी। पार्टनरशिप का मीनिंग पता है क्या है? पार्टनर्स इन ए शिप। एक शिप है, जब तक वो डूबती नहीं है तब तक वो पार्टनर्स के अंदर हैं, और वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, बिजनेस को चलाने में भी हेल्प करेंगे, और उनके बदले में वो कोई सैलरी डिमांड नहीं करेंगे। हाँ, सैलरी चाहिए तो पहले डिसाइड कर लो, कोई बात नहीं, बट ऐसा नहीं कि तुम सैलरी मांग रहे हो उसके ऊपर। लाइक दैट। आप इसको रीड कर लो, कुछ लगता है आपको? अब ये, अच्छा यहाँ पे आके थ्योरी खत्म हो जाएगी हमारी, लास्ट पॉइंट थ्योरी का। 12th में आपको थ्योरी ज़्यादा नहीं मिलेगी किसी भी चैप्टर की। ये क्या है? अगर आप कोई हिडन प्रॉफिट कमाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ का पार्टनर हूँ, ऐसा मान लेते हैं कि मैं ओनर नहीं हूँ, यहाँ 3 लोग हम पार्टनर हैं, और कोई स्टूडेंट यहाँ आया और मैं वहाँ पे उस टाइम था, मैंने बोला ऐसा करो, आप ना घर पे आ जाओ पढ़ने, मैं यहाँ अच्छा नहीं पढ़ाता ज़्यादा, यहाँ नहीं मैं ज़्यादा अच्छा टीच करूँगा, आप घर पे आ जाओ, मैं घर पे पढ़ाता हूँ रात को 7 to 8:30, वहाँ मैं आपसे फीस भी कम ले लूँगा और मैं आपको ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊँगा। इंस्टीट्यूट में मत पढ़ो आप मेरे पास आके, पढ़ाऊँगा तो मैं ही। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठ के अपनी फॉर्म का क्या कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, यहाँ से कस्टमर निकाल निकाल के घर भेज रहा हूँ। ये रियल लाइफ में होता है बेटा ऐसा। तब तभी तो लोग ना ह्यूमन फैक्टर से डरते हैं। आपने अगर किसी को पार्टनर बना लिया ना, पता चला कि सारे क्लाइंट्स ही ले गया वो आपके, सारे सीक्रेट्स ले गया, ठीक है, इस तरह से। तो क्योंकि वो कैसा भी हो सकता है, हम अपने ब्रदर पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। अब मैं अकेला हूँ तो मेरा डिसीजन है, लेकिन साथ में पार्टनर हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है, वो कुछ भी कर सकता है। पर अगर मैंने पकड़ लिया उसको ऐसा करता हुआ, मैंने देखा कि वो ट्यूशन पढ़ा, मैं उसके घर पे गया, वो देखा कि ट्यूशन पढ़ा रहा है हमारी स्टूडेंट्स को, हमें पता ही नहीं है। अब वो जो उसने प्रॉफिट कमाया ना, सारा उसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने हिडन प्रॉफिट कमाया। और ये कब होगा, जब वो सिमिलर बिजनेस कर रहे हैं, कुछ और कर ले, प्रॉपर्टी का काम कर लो घर बैठ के, चलेगा। मैं तो कोचिंग का दे रहा हूँ, मेरे को मतलब ही नहीं, आप मेरे कंप्यूटर थोड़ी बन रहे हो। बट वेन आई एम सेक्टर 20, कोचिंग सेंटर है हमारा तीनों का मिलके, आप घर पे नहीं पढ़ा सकते फिर। अब घर पे भी कुछ स्टूडेंट आता है ना पूछने, और बेटा नहीं नहीं मैं घर पे नहीं पढ़ाता, आप वही सेंटर पे आ जाओ, वहाँ पे आपको सब कुछ बहुत बढ़िया मिलेगा। घर पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मेरे पास, मैं उस तरह से टेबल पे बैठ के पढ़ाऊंगा आपको, इतना आपको अच्छा लगेगा। तो मुझे ये करना है, ना कि मुझे यहाँ से कस्टमर को घर पे भेजना। तो अगर मैं कुछ हिडन प्रॉफिट कमाता हूँ तो मुझे फॉर्म को देना पड़ेगा, बट अगर ऐसा कुछ करते थे मुझे क्या हो गया, लॉस। लॉस किसका है? सिर्फ आपका। आपने पंगा लिया, आप भुगतो। पर अगर आपने फॉर्म का नाम यूज करके कुछ प्रॉफिट कमाया तो वापस करना पड़ेगा। और सिमिलर बिजनेस करना अलाउड ही नहीं है, उसके लिए एक पैरामीटर है कि आप 12 किलोमीटर के अंदर या 15 किलोमीटर के अंदर, वो चेंज होता रहता है लॉ में, उस लिमिट तक नहीं कर सकते। हाँ, अब मुझे कालका में ब्रांच ओपन करनी है तो फिर क्या होता है, वो 20 सेक्टर कालका तो वो दूर है, या पंचकुला ही कर लो आप, वहां कर सकता हूँ, बट यहाँ नहीं। ये पॉइंट है, ये मेरी ड्यूटीज हैं सब, ये आपको बता दिया सेम नेचर का। ये सेकंड पॉइंट था आपका। ये भी बता दिया कि मैं अपना शेयर किसी को सेल नहीं करूँगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल की ओर। और न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं मतलब न्यूमेरिकल का जो बेस है वो स्टार्ट होने वाला है। हमारा जो फर्स्ट बेस है बेटा वो ये है कि अगर कोई डीड
नहीं है या डीड है, तुम्हारा डिसीजन क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप डीड क्या है, अभी अभी समझाया था, कुछ याद है आपको? रिटर्न रिटर्न एग्रीमेंट डीड है, तो बताओ उसमें क्या क्या लिखवा सकते हो आप? जस्ट ट्राई, अभी इसको मत रीड करो। प्रॉफिट रेशो, और पहले स्टार्ट करो, और पहले जैसे पार्टनर्स के नेम, यस यस, नेचर ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ बिजनेस, लाइसेंस, रिस्क इन्वॉल्व, पार्टनर का शेयर, फिर आगे 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 कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि एक मिनट, मुझे इतना ज़्यादा नहीं आता, रुको रुको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग क्या है? जब तीन पार्टनर्स की कैपिटल अलग अलग होती है ना, अब किसी की ज़्यादा है, वो फिर उसमें एक क्लोज डलवाएगा, देखो भी मेरे तो लगे 10 लाख 10 लाख, तुम लोगों ने क्या 5 लाख लगाया है, तो मेरे को उसका कुछ बेनिफिट चाहिए, तो फिर कहते हैं हम ऐसा करते हैं 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देते हैं क्वेश्चन में। अब सुनने में एक वर्ड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे चैप्टर का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ।